أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Translation. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Recite in the name of your Lord, who created man from a piece of thick coagulated blood. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. Sadaqallahul Azim. जज़ाकल्लाह। मैं अपनी एक FIP ग्रुप मेंबर राफिया फरहान हाशमी को अब यहाँ इनवाइट करने लगा हूँ। वो आपको इस प्रोजेक्ट के जर्नी के हवाले से जो चीज़ें रहीं उसके हवाले से एक छोटा सा रिकैप देना चाहेंगे। तो राफिया फरहान हाशमी प्लीज़। Assalamu alaikum. I am Rafia Farhan Hashmi, a member of the FYP group AIFPU.
Our whole journey concerning AIFPU first began from our summer vacation of 2021. पहले हमें आइडिया नहीं था कि हम FIP में क्या टॉपिक चूज़ करेंगे. बेसिकली वी वर क्लूलेस. फिर मर्ल पिक्चर में आया. सो मर्ल गेव अस अ चैलेंज कि आप पाकिस्तान की पहली पैरामीटराइज्ड FPU तैयार करें जो कि RIS-5 के 25 इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सके. सो एट दैट मोमेंट हमने सोचा लेट्स डू दिस, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं. हमने एक्सेप्ट किया. सो द फर्स्ट मंथ जो हमारे थे वो सब स्मूथली गए. टाइनी अचीवमेंट्स हमारी एक इंस्ट्रक्शन भी बेहतरीन जाती थी, हमारा विल जो था वो बूस्ट होकर टॉप पे जाता था. सो एवरीथिंग वेंट वेल. हमने सोचा हम आगे भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह करके रहेंगे. बट आफ्टर दो सक्सेसफुल मंथ्स जब हमने इंडस्ट्रियल लेवल पर टेस्ट किए, देन वी फाउंड आउट वी आर एट लेवल 0 अगेन. वी वर डिमोटिवेटेड, वी वर मिसअंडरस्टूड much by many, and our efforts were questioned. Everything just kept on going wrong in our FPU and our will started to falter. फिर हमारे advisors, Dr. Salman Zafar and Dr. Mohammad Sabi, as well as the help of our senior mentor engineer Hamza Shabbir, उन्होंने हमारी help की, and we were able to overcome that sad phase. हमने MPW6 को अपना aim बनाया. We worked day and night, sleepless nights. We worked hard on it. We struggled, we strived, and then we conquered. 56 submissions किए गए MPW6 में internationally, out of which 52 जो थे वो select किए गए. हमने submit किए 3 designs, and माशाल्लाह से उन 52 जो कि select हुए 2 हमारे designs थे. After that, inshallah, we will achieve our taped out chip in DHA Sufa University. And it will be the first ever chip designed by undergraduate students of DHA Sufa University. We are so thankful to our advisors, our senior, and our university. But the most thankful we are to the Murl APR team led by Hafiz Wajiul Hassan along with his team members, Hamza Saeed, Sayam Naqvi, Najar Nasir, Kurutul Ain for performing the physical layout of AIFPU. हमारी मेहनत के equal amount API की टीम की मेहनत है. If they weren't with us here, then maybe the submission would not have been possible for us. Before going further, we would like to express our gratitude towards our APR team. So please give them a huge round of applause. The lesson that I want all of you to learn from this whole story is that if you guys believe that you can do it, then you can do it. There will be situations in which you will be questioned for your choices, your efforts, and your sacrifices. But you have to just smile and say, give up on me giving up. Let your success be what silences them and just keep on going. Thank you. Thank you, Rafia. Before we proceed further, मैं चाहूँगा अपने टीचर इंजीनियर उमैर बिन मंसूर से कि वो आएँ और कुछ ख्यालात का इज़हार करें. अस्सलाम वालेकुम. Thank you guys for working very hard. This is actually a very good big achievement. अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये कि विद टाइम ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो काम हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो बहुत अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है. अच्छा, जो बीइंग एन FIP कोऑर्डिनेटर इन DHA सुफा यूनिवर्सिटी, मैं कुछ चीज़ें बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो अभी फाइनल ईयर में नहीं आए. कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि आपने सारी ज़िंदगी एज योर कैरियर क्या काम करना है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें फाइनल ईयर में नहीं होता. नॉट इवन आफ्टर व्हेन वी ग्रेजुएट हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग पे क्या हो रहा है. तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करके एक साल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट
की अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो नॉलेज रिक्वायरमेंट में लगाते हैं ना, it actually encompasses all your efforts towards finding out a solution that you are looking forward. ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा उसमें डूब चुके होते हैं कि you have figured out a lot of things that most of you don't know. यानी आपका एक अपना एरिया है, उसमें आपने रिसर्च की है, तो you know better about that area as compared to the students who are working on different other projects. तो आपको फिर जब इतनी नॉलेज आ जाती है अपनी फील्ड के बारे में, तो फिर आप चाहते हैं कि आप उसी में ही एक्सेल करें आगे. एंड इफ़ यू गेट अ जॉब दैट इज़ रिलेटेड टू योर रिसर्च एरिया, तो फिर आप उसमें आपको जो आपकी सारी एफर्ट्स हैं FIP की, वो आपको पे ऑफ करती हैं. एक रुझान है जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ वर्किंग दिस हार्ड. ठीक है, तो एक बहुत मशहूर सेइंग है कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप ऑफ द रूम. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज करें, अगर उसका मार्केट ट्रेंड उस दौर में अच्छा नहीं भी है ना, लेकिन अगर आप उसमें यूनिक हैं अपनी फील्ड में, यू आर अमंग द टॉप 10, तो आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी सोसाइटी में. सो इस चीज़ को समझें. सो वट एवर यू थिंक यू आर गुड एट, डू दैट एंड रीच टू द टॉप ऑफ दैट. यानी उसको एक्सेलेंस पे लेके जाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस फील्ड के बारे में. तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी ना लोगों को ज़रूरत, आपका पता लग जाएगा कि आप की ज़रूरत है सोसाइटी में. ठीक है, डोंट जस्ट वर्क फॉर सम मटीरियल गेन. आप अपनी नॉलेज हासिल करें अपने आप को एक्सेलेंस पे पहुंचाने के लिए, एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉलो अप. ठीक है, तो thank you very much for everyone to attend this presentation. I would like now to call Ali to further this presentation. Okay, thank you very much. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. मेरी गुजारिश सबसे है कि आप प्लीज़ सेटल डाउन हो जाएं आराम से, ताकि फिर प्रोसीड कर सकें आगे. मैं बाय प्रोसीडिंग फर्दर मैं अपने एक और कुलीग इज़ान इस्लाम को दावत देना चाहूँगा कि वहाँ थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि व्हाट इज़ एक्चुअली मर्ल्ड और कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और अब किस जानिब गामज़न है. तो इज़ान इस्लामुद्दीन प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम. सारे जानते ही हैं मैं आपका 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मर्ल्ड में एज ए रिसर्च इंटर्न काम भी करता हूँ. तो मर्ल्ड की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी बेसिकली 3 बंदों के एक एम से. एम डॉक्टर रूमी का, जो अभी आपको आके शायद मोटिवेशनल टॉक देंगे, हमारे एक्स HOD डॉक्टर सलमान ज़फ़र और उनके कुछ कॉलीग्स. एम तीनों का बेसिकली यही था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान को IC डिज़ाइनिंग की बिग पिक्चर में शामिल करना है. जैसे वेस्ट में इंटेल है और बहुत सारी कंपनीज़ है, इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम भी आया. पर इस जर्नी में ये जो एम था, इसको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना था. पहली मुश्किल क्या थी कि IC फैब्रिकेशन की जो टेक्नोलॉजी थी या IC डिज़ाइनिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो पेटेंट थी कुछ कंपनीज़ के पास. इंटेल पेटेंट, एप्पल पेटेंट, इसी तरीके से और भी. तो अगर उनका ये पेटेंट प्रोडक्ट था तो जाहिर सी बात है आप उन चीज़ को नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, आपको उनसे बाय करना पड़ता था. और इस बाय के लिए वो आपसे कितने भी डॉलर्स ले सकते थे. 10,000 ले लें, 10 मिलियन ले लें, 1 बिलियन ले लें, या आप पे US सैंक्शंस लगा के आपको वो ICs बेचे ही ना, आप फिर कुछ नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत बड़ा लैकिंग फैक्टर था पाकिस्तान के लिए, जिसको उन लोगों ने देखा, जाना और इसको कवर अप करने की कोशिश की. इसी सिलसिले में
फिर कुछ ऐसी सीरीज ऑफ स्टेप हुए जिससे ये मर्ल का और एग्जिस्टेंस में हेल्प मिली। पहला स्टेप क्या था कि RISC-V ओपन सोर्स ISA का आना वर्ल्ड इमेज में। RISC-V ओपन सोर्स ISA के तहत आप कोई भी चिप डिज़ाइनिंग या कोई भी अपनी डिज़ाइनिंग ओपन सोर्स हार्डवेयर या ओपन सोर्स चीज़ों को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अब क्योंकि वो ओपन सोर्स थी तो उनसे पेटेंट प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं था, पर स्टिल पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अभी IC डिज़ाइनिंग, वैसे तो कोई यूनिवर्सिटी इस चीज़ में आपको स्पेशलाइजेशन करवाती नहीं है, तो ये एक फैक्टर था कि हमारे पास ट्रेंड इंजीनियर तो है ही नहीं। सेकंड फैक्टर, गवर्नमेंटल लेवल पर इतनी फंडिंग्स नहीं है। अब अगर हम फैब्रिकेशन की ही बात करें तो फैब्रिकेशन की एक इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 to 20 बिलियन डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड नेशन है, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर था जो हम नहीं कर सकते। पर खैर उन्होंने इस जर्नी का स्टार्ट किया और जो पहला स्टेप रखा वो IC डिज़ाइनर्स डेवलप किया। IC डिज़ाइनर्स भी प्रोफेशनल लोगों को ट्रेन नहीं किया, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पिक किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेवल। जैसे हम हैं, हमारे सीनियर्स हैं, ये सारे अंडर ग्रेड लेवल पे मर्ल के साथ ज्वाइन होते हैं। अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पिक करने का फ़ायदा क्या है कि फ्रॉम द वेरी बेसिक कोर ग्राउंड लेवल पे आप उनकी ट्रेनिंग करके उन्हें एक अच्छा IC डिज़ाइनर बना सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप एक प्रोफेशनल उठाएं। तो इसी तरीके से अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को टैप किया गया और स्टार्टिंग में एक UIT में ब्रांच खुली, DHA सूफा में हुई और काम स्टार्ट किया। इसी अंडर ग्रेड की टीम ने ही पाकिस्तान का पहला माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया था जिसे इब्तिदा का नाम दिया गया था। वो भी अच्छा, इस माइक्रो प्रोसेसर के पीछे एक और कहानी है। माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन और डेवलप तो हम कर सकते थे और इतनी कैपेबिलिटी रख ली थी, पर टेप आउट के अगेन एक मसला था जो यहाँ नहीं था और बाहर से $10,000 का होता था। ये मुश्किल कैसे आसान हुई? ये ऐसे आसान हुई कि गूगल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसको नाम दिया MPW। उस MPW प्रोग्राम के अंडर मर्ल ने अपनी पहली IC इब्तिदा का टेप आउट करवाया, जिसकी सेरेमनी में आई गेस आप सबने देखा भी होगा, प्रेसिडेंट आए थे। और उसी टेप आउट के अंडर फिर हमने भी अपना AIFPO टेप आउट अब करवाया है और उन्हें सेंड किया है। तो ये कुछ जर्नी थी जिसे लेकर मर्ल फ्रॉम द वेरी स्क्रैच अब पाकिस्तान के माइक्रो प्रोसेसर डेवलप कर रही है। अगर इसी के साथ साथ मैं कंटिन्यू करता हुआ आगे IC डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करूं कि सही है मर्ल IC डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, पर ये प्रोसीजर क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है, IC डेवलप होती कैसे। बेसिकली किसी भी IC डेवलपमेंट इंडस्ट्री या कहीं पे भी तीन प्रोसीजर्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, 3 डिपार्ट्स कह लें आप। पहला टास्क होता है उसकी RTL डिज़ाइनिंग करना, सेकंड होता है उसकी वेरिफिकेशन करना, थर्ड इज APR। RTL डिज़ाइनिंग में आप अपने हार्डवेयर को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबने C++ पढ़ी भी होगी। C++ में हम एक फॉर का लूप लगा लेते हैं। हमें कंप्यूटर से काम होता है कि आप एक कैलकुलेटर बनाएं जो एडिशन करता रहे 1000 बार +1 +1 +1। अब हम ये फॉर लूप लगाते हैं और कंप्यूटर से काम करवा लेते हैं। सेम तरीके का काम अगर हमें हार्डवेयर लेवल पे करना है, जाहिर है वो सॉफ्टवेयर है, उसका कोई हार्डवेयर भी तो डेवलप करना होगा ना रियल लाइफ के लिए। फॉर देट वी यूज़ RTL डिज़ाइनिंग, जिसको एक लैंग्वेज है वेरीलॉग, उसके ऊपर किया जाता है। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आप सबने DLD के कोर्सेज में पढ़ा होगा काउंटर्स। आप या तो उन्हें हाथ से फ्लिप फ्लॉप्स जोड़ के बनाएं, पर ऐसा नहीं होता। एक IC के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो वहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप सारे ब्लॉक्स डेवलप करते हो। अब यहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन डेवलप कर लिया काउंटर का या किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट केम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आजकल बहुत मार्केट में बूम करता हुआ वर्ड है, एक बज़ वर्ड भी चल रहा है कि वेरिफिकेशन इंजीनियर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, और ये किसी हद तक सच भी बात है। सही, ये डिज़ाइन आपने कर लिया, पर अगर आप $10,000 देकर टेप आउट करवा रहे हो तो यू हैव टू बी श्योर कि उसकी वो IC बिल्कुल सही है, उसका डिज़ाइन बिल्कुल सही है, उसमें कोई लैक ना हो। तो वहाँ आती है वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप रैंडमली या किसी भी तरीके से एक एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं और उससे अपनी IC को टेस्ट करते हैं फॉर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इनपुट, जितना आप कर सकें। वेरिफिकेशन का स्टेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आजकल जो इन मार्केट में टॉप पे चल रहे हैं। उसके बाद आता है APR। APR में क्या करते हैं हम लोग कि आप अक्सर सुनते होंगे कि इंटेल का प्रोसेसर आया 1 गीगाहर्ट्ज़ का, एप्पल ने अपनी कोर की स्पीड बढ़ा के कर दी 10 गीगाहर्ट्ज़। ये क्या है? ये सारा प्रोसेस होता है APR के अंदर। जब आप अपने डिज़ाइन की टाइमिंग एनालिसिस करते हैं, उसकी एरिया एनालिसिस करते हैं। अब
आपने डिज़ाइन तो बना लिया, पता चला उसका एरिया इतना बड़ा है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इट्स नो यूज़। फिर आप उसका करते हैं APR में सारी एनालिसिस, उसका एरिया है सही नहीं है, उसकी टाइमिंग एनालिसिस सही है या नहीं है, और उसमें मैनुअल प्लेसमेंट के मेमोरी आपकी कहाँ लगेगी, बाकी सारी चीज़ें वो सारी होती हैं। इन 3 स्टेप्स के बाद हमारी एक फाइनली IC की फ़ाइल बनती है, जिसको फिर हम फर्दर फॉरेन कंट्रीज़ में, एट द मोमेंट मर्ल फॉरेन कंट्रीज़ में भेजती है उनकी टेप आउट के लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में टेप आउट की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। थैंक यू। Thank you, Izan. Before proceeding forward, I am here to apologize. थोड़ा सा एक डिले है डॉक्टर रूमी के आने में। आज उनकी मेन टॉक है जो आप सबसे बात करने आज वो आ रहे हैं, तो प्लीज़ बी सीटेड एंड सॉरी फॉर द डिले, लेकिन वो जल्द आ रहे हैं और फिर टॉक शुरू करेंगे।